Very good morning, students. Welcome back. Today we are going to discuss with our next point, measurement of price elasticity of demand. Okay. See, measurement of price elasticity of demand. In that, generally we are going to study various methods to measure price elasticity of demand. Okay, there are generally three methods to measure price elasticity of demand, to find out the price elasticity of demand. Okay, but before we start, let's revise some points which we have studied in last lecture. See, in last lecture we have studied types of price elasticity of demand, right? So let's revise once numerical values of price elasticity of demands. Okay, there are how many types? There are generally 5 types. First is perfectly elastic demand. Second is perfectly inelastic demand. Third is unitary elastic demand. Fourth is relatively elastic demand, and fifth is relatively inelastic demand. Fine. So there are generally 5 types of price elasticity of demand, and their numerical values are infinite in case of perfectly elastic demand, 0 in case of perfectly inelastic demand, 1 in case of unitary elastic demand, more than 1. Okay, so we generally call this ED is more than 1 in case of relatively elastic demand, and less than 1 in case of relatively inelastic demand. Okay, these are the numerical values which we have studied. And मैंने बोला था आपको कि अगर आप इतना सा अगर ठीक से याद कर लेते हो तो सारे के सारे टाइप्स आप एकदम इजीली लिख सकते हो. ठीक है, एक टाइप के अंदर 4 पॉइंट्स है, जनरली चारों पॉइंट्स अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ठीक से याद करते हो तो वही सेम सेंटेंसेस आपको हर बार लिखने हैं. सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसमें हम पुट कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, वो हमें चेंज करनी है. ठीक है, तो आई होप कि आपको वो समझा भी होगा, क्योंकि मेरे पास किसी का भी कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझा. तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपको समझ गया है. एंड इफ सी गाइज, आई हैव सीन सम केसेस कि समझ में नहीं भी आते फिर भी नहीं पूछते, तो ऐसा भी मत करो प्लीज. इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज, डाउट्स, if you ask me, then and then only I can solve your queries or your doubts. Okay, अगर आप मुझे पता ही नहीं चलने दोगे कि आपको क्या क्वेरी है, क्या डाउट है, तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो so that we can work on that and we can just clear all our queries and doubts. Fine. See, हमें बस क्या ध्यान में रखना है, इसका सीक्वेंस और इन्फिनाइट 0 1 मोर देन 1 लेस देन 1. ठीक है, इन्फिनाइट 0 1 मोर देन 1 लेस देन 1, बस इतना ध्यान में रखा तो हमारे पूरे के पूरे टाइप्स क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. नाउ वी हैव टू सी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सी वी नो व्हेन price of any commodity increases, demand for that commodity decreases, and vice versa. Means when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. Okay, so this is the relationship, this is the inverse relationship between price and quantity demanded. There is always inverse relationship between price and quantity demanded, but just price increases and demand decreases, or price decreases and demand increases is not enough to know. So for that purpose we must know the extent the extent to which
to which demand increases or decreases with the change in price. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपकी प्राइस कितनी भी चेंज होने दो, अभी हमने लास्ट टेस्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर, कि आपकी प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए आपका डिमांड थोड़ा भी चेंज नहीं होता है, मतलब आपका डिमांड कैसा है, जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, राइट. या कभी कभी थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज होगा तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती है, तो वो हो गई आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, इन्फिनाइट. सो जनरली वी मस्ट नो द एक्सटेंट टू विच डिमांड increases or decreases with response to the price. Okay, so for that purpose we must measure price elasticity of demand. अभी ये चीज तो हमें पता चल गई कि ये 5 टाइप्स है, बट भाई कैसे पता करना है हमें. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक कंडीशन दे दिए कि आपकी प्राइस थी रुपीज सपोज 100. ओके, प्राइस रुपीज 100 एंड डिमांड था 1000 यूनिट्स. फाइन. Price became 50 and demand became 1500. सही चीज है भाई, प्राइस आपकी कम हुई है, प्राइस आपकी क्या हुई है, कम हुई है. देखो 100 से 50 हो गई एंड डिमांड आपका इंक्रीज हुआ है, 1000 से 1500 हो गया. मीन्स योर लॉ ऑफ डिमांड इज करेक्ट. ओके, सो जब ये चीज होने वाली है, ओके, प्राइस आपकी 100 से 50 हो गई है एंड डिमांड 1000 से 1500 हो गया है. सो इन दैट केस वी मस्ट मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बट हम क्या देख के बोल सकते हैं कि ये डिमांड कैसा है, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक है. सिर्फ देख के हम ये नहीं बोल सकते. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव सम फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच डिमांड वैरीज. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितना आपका डिमांड वैरी हो रहा है, कितना डिमांड आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं elasticity of demand. And there are total 3 methods to measure elasticity of demand. First is ratio method, second is total expenditure method, and third is point method. Ratio method or percentage method, this is also known as arithmetic method. Okay, ratio method or percentage method, it is also known as arithmetic method or proportional method or proportional method. Okay, fine. So we have got total 4 names. अब तक हमें 4 नाम पता चल चुके हैं इसके. ठीक है, फर्स्ट है रेशियो मेथड, नेक्स्ट परसेंटेज मेथड, थर्ड अर्थमेटिक मेथड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल मेथड. ओके, सो दिस ऑल आर वन एंड सेम, देयर इज नो डिफरेंस. एंड अंडर दिस मेथड how we can calculate price elasticity of demand. So let's see the formula to calculate price elasticity of demand is very easy. Okay, ED means what? ED means elasticity of demand. Okay, ED is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. Okay, so under this we consider percentage change in demand and we divide this by percentage change in price. Okay, इसको अगर आपको थोड़ा सा सिंबॉलिकली लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हो, ED is equal to परसेंटेज चेंज इन डिमांड. परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा. डेल्टा मीन से ट्रायंगल होता है. ओके, डिमांड है उसके लिए हम बोलेंगे क्यू. क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, क्यू मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज मीन्स डेल्टा इन प्राइस. फाइन. सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ऐसा भी आप बोल सकते हो. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला दिया है, बट उससे भी आपका आंसर सेम आने वाला है और इससे भी आपका आंसर सेम आने वाला है. फाइन. सो सी, थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज भी ऐड कर दो.
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, सो लेट्स हम इसी को कंसिडर करेंगे. ठीक है, ज्यादा इसके लिए हम डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा वो आपको, नथिंग एल्स. ओके फाइन. सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स अंडर रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड और अर्थमेटिक मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड. ओके, नाउ सी वी हैव सीन, ये वाला एग्जांपल जो है वही हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, प्राइस आपकी थी 100 रुपीज. 100 रुपीज से आपकी प्राइस हो गई अभी 50 रुपीज. तो प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, करेक्ट है, प्राइस डिक्रीज. हाउ मच योर प्राइस डिक्रीज्ड? 100 रुपीज था, 100 रुपीज से 50 रुपीज हुआ है, मतलब 50% से आपका प्राइस कम हुआ, राइट. सो चेंज इन डिमांड इज परसेंटेज चेंज चाहिए हमें. ठीक है, 50. 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 नहीं लिया है मैंने. ओके, वी हैव टू कंसिडर परसेंटेज. ओके, 50%. फाइन, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे परसेंट. 50% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हुआ है देखते हैं. आई एम सॉरी. ये जो 50% हुआ है, ठीक है, ये प्राइस में चेंज है. ओके, दिस वाज प्राइस. आपकी प्राइस थी 100 रुपीज, आपकी प्राइस थी 100 रुपीज, उसमें से हुई है 50 रुपीज, मतलब आपकी प्राइस 50% से डिक्रीज हुई है. ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%. 50% हमें नीचे लेना होता है, तो ये मैंने ले लिया नीचे 50%. अब डिमांड में देखते कितना चेंज हो रहा है. डिमांड था आपका 1000 और 1000 से हो गया 500 प्लस, मतलब 1500. ओके, सो 500 का आपका चेंज हुआ है डिमांड के अंदर, राइट. पहले था आपका ओरिजिनल 1000 और प्लस 500 हुआ है. 500 कितना है? 1000 का 50% है ना. ओके, मीन्स डिमांड इंक्रीज बाय 50%. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे 50%. सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 50% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज ऑल्सो 50%. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मैथमेटिकल, अगर आपको कैलकुलेशन आते होंगे तो 50 1 जा 50, आपका आंसर आ गया 1. ईडी इज इक्वल टू 1. ओके, ईडी इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? इन दिस एग्जांपल your elasticity of demand is what? Your elasticity of demand is unitary elastic. Okay, because your elasticity comes 1. Fine. So here you can say in this example the demand is unitary elastic. Okay, let's take another example. एक और example लेते हैं हम. Price and quantity demanded. Okay, प्राइस थी आपकी 100 रुपीज. 100 रुपीज से प्राइस आपकी हो गई है 50 रुपीज. 100 रुपीज में से आपकी प्राइस कितनी हो गई है? 50 रुपीज. ठीक है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे. डिमांड जो है आपका, डिमांड ओरिजिनल था 1000 यूनिट्स एंड नाउ योर डिमांड बिकेम 2000 यूनिट्स. ओके, सी व्हाट्स हैपनिंग. Your demand became 2000 units. So in this case, we have to consider percentage change in demand. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ED is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. Okay, लेट्स सी कितना चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर. परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज हाउ मच? 1000 था, 1000 से 2000 हुआ, मतलब डबल हो गया है. ओके, कितना प्लस हुआ है उसके अंदर? एडिशन कितना है? एडिशन है 1000 का. ओके, 1000 आपके 1000 का कितना है? 100% है ना, राइट. सो योर डिमांड इंक्रीज्ड बाय 100% व्हेन योर प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 100 से 50 हो गया, मतलब प्राइस आपकी हाफ हो गई है ना. ओके, हाफ हो गई है प्राइस. हाफ को ही हम कैसे बोलेंगे? 50% बोल सकते हैं. ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50%. सो इन दैट केस 51 जा 50, 52 जा 100. आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? 2. ईडी इज इक्वल टू 2.
इफ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, दैट मीन्स व्हाट, इट इज इन्फिनाइट है क्या ये? नहीं, इन्फिनाइट मीन्स क्या? बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। ओके, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। 2 मतलब अनलिमिटेड तो नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, मोर देन 1 है। ओके, 1 से ज्यादा है ये, लेस देन 1 भी नहीं है। ओके, सो मोर देन 1, इन दैट केस वी मे कॉल दिस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी हियर, फॉर एग्जांपल price and demand. Okay, your price was 100 rupees and then your price reduced to rupees 50 and your demand was 1000 rupees and your demand now increased to 1200 rupees. Okay, बराबर है ना भाई? आपकी प्राइस देखो, प्राइस कम हुई है, प्राइस रिड्यूसेस एंड डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, बस हमें चेक करना है कि हाउ मच द एक्सटेंट टू विच योर डिमांड इंक्रीजेस, कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दिस केस ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन demand upon percentage change in price. Okay, let's put the values. डिमांड में कितना चेंज हो रहा है देखो, डिमांड था आपका 1000 और अब हो चुका है 1200, मीन्स 200 का एडिशन हुआ है। ओके, 1000 से 200 प्लस हुआ, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। ओके, 20% का आपका यहाँ पे एडिशन हुआ है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? सी, प्राइस में तो हमने हर जगह पे सेम ही रखा है। ओके, 100 से 50 हुआ, मतलब 50% का चेंज हुआ है, राइट? सो 50%। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस। ओके, दिस कम्स योर 0.4%, आई थिंक। ओके, कैलकुलेट करके देख लेना, दिस शुड कम 0.4%। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 0.4% आपका आंसर आएगा। नाउ योर ईडी इज 0.4%, सो योर ईडी इज इन्फिनाइट है क्या? नहीं, इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड होता है ना भाई। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे कोई नंबर आने वाला ही नहीं है, 0 भी नहीं है, ये 1 भी नहीं है। यहाँ पे 1 था एक्चुअली, तो ये 1 भी नहीं है, मोर देन 1 भी नहीं है, दिस इज लेस देन 1। ओके, 0 से पॉइंट में कुछ है ना, मीन्स 1 से थोड़ा सा कम ही है ये, 1 से ज्यादा नहीं है। सो इन दिस केस वी मे कॉल द डिमांड इज रिलेटिवली अनइलास्टिक। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड। फाइन, इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड मेथड दैट वी हैव टू सी इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अंडर दिस मेथड वी कंसिडर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विथ रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि सपोज मेरे पास 100 रुपीज थे, फाइन, 100 रुपीज में या फिर खर्चा करता हूं मैं 100 रुपीज का, अगर कोई कमोडिटी में परचेस कर रहा हूं तो अगर कमोडिटी की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो मैं 50 रुपए ही खर्चा करूंगा। ठीक है, या फिर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं 150 रुपए तक खर्चा करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, मैं मेरी सेविंग्स थोड़ी सी कम कर लूंगा और यहाँ पे मैं स्पेंड करूंगा। ऐसा भी होता है कई बार। ओके, कि प्राइस कम हुई है भाई, बाकी के खर्चे थोड़े से कम करते हैं और यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी के अभी कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। ओके, गोल्ड जनरली सपोज आप हर दिवाली पे 10 ग्राम्स गोल्ड लेते हो, ठीक है, 1 तोला सोना खरीदते हो
हर दिवाली पे, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ओके, कि हर दिवाली पे आप 10 ग्राम सोना खरीदते हो, 10 ग्राम्स गोल्ड आप परचेस करते हो, ओके। बट क्या हुआ है ना कि इस दिवाली पे जो गोल्ड की प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ते 30,000 हर बार होती है, इस बार वो 30,000 से डायरेक्टली 20,000 हो गई है, ओके। मतलब बहुत कम हो गई है प्राइस, इतनी कम जनरली होती नहीं है। तो आपने क्या सोचा कि इस बार में और भी जो बाकी सारे खर्चे करने वाला था, ठीक है, जो भी मेरे बाकी के प्लान्स वगैरह थे वो सबको मैं फिलहाल पेंडिंग रख देता हूँ और सारा का सारा मेरा जो पैसा है सब मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो 10 ग्राम की जगह पे मैंने सोचा कि मैं 10 kg, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम, 10 kg गोल्ड परचेस कर लेता हूँ। तो ऐसा भी होता है ना कि मैं मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर में करने वाला था, ओके, मतलब मेरा जो बजट था कितना था, 20,000, आई मीन 30,000 का बजट था, राइट। हर साल में 30,000 का खर्चा करता था, मेरा 30,000 का बजट था। बट अब क्या होने वाला है, मैं 20,000 जब प्राइस हो चुकी है तो मैं उससे 100 टाइम्स परचेस करने के लिए रेडी हूं। मतलब मैं लगभग 2 करोड़ रुपए तो इस पे खर्च करने के लिए रेडी हो चुका हूं, ओके। 2 करोड़ या 20 लाख, वॉट एवर इट इज, ओके। तो जो भी होगा, मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर करने का जो भी एक माइंडसेट था वो चेंज होते रहता है, ओके। तो दिस इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, फिर से एक बार देखते हैं what is total expenditure method. So under total expenditure method, elasticity of demand is measured by comparing change in total expenditure on a commodity in response to change in the price of a commodity, okay। मतलब प्राइस में अगर चेंज होता है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, एंड इन दैट मेथड जनरली वी कैन फाइंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। इस मेथड के अंदर हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि पहले 2 टाइप्स थे, ओके, वो जनरली हम इसके अंदर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। हम ये सिर्फ 3 टाइप्स ही फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। वो 2 क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ओके। नाउ सी, टोटल एक्सपेंडिचर है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, इसकी प्राइस है सपोज 10 रुपए, और जब इसकी प्राइस 10 रुपए होती है तो मुझे 5 पेन परचेस करने हैं। मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 50 रुपए, बराबर है। तो ये क्या हो गया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। हाउ वी कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर, बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस विथ क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। नाउ सी वन बाय वन, एक बार हम ये पूरा चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये हम देख सकते हैं, या फिर एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, ओके, ये भी मेथड अल्फ्रेड मार्शल ने ही दी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, योर डिमांड में बी यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो सिंपली व्हेन योर क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, और यू मे कॉल इट टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं। सो व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यू विल कॉल दिस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ओके। अंडर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, and when your total expenditure decreases, it is known as relatively inelastic demand, ठीक है। नहीं समझा होगा डेफिनेटली, एक बार हम एग्जांपल देखेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा, फाइन। सी, एक चीज तो हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस को हम पी बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्यू बोलते हैं। प्राइस हम मेजर करते हैं रुपीज में, फाइन। व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेस 10, 20, 30, 40, 50, 60, जब प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो आपका डिमांड डिक्रीज होता है, ये हमें पता है, ओके। 6, 5, 4, 3, 2, 1, फाइन। तो डिमांड आपका डिक्रीज हो रहा है, प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है,
Okay, so according to law of demand, this is correct. Now see total expenditure, because this is a total expenditure method. ठीक है, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे. तो हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे. हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी ना. ओके, यहाँ पे भी लिखा है देखो P इंटू क्यू. तो हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली. ओके, सो when we multiply 10 with 6 we will get 60. Okay, 20 5s are 100. Okay, next 30 into 4 120, 120, and 40 into 3 120. Okay, next 50 into 2 100, 50 into 2 100, and 60 into 1 60. Okay, so we have calculated total expenditure on any particular commodity. Okay, now let's discuss. Now see one by one. When your price was rupees 10, demand was 60, demand was 6 units, that means your total expenditure became 60 rupees. बराबर है, आपने टोटल 60 रुपए का खर्चा किया. 10 रुपए प्राइस थी और आपने 6 यूनिट्स का डिमांड किया, मतलब टोटल आपने 60 रुपए खर्चा किया है. ओके, जब आपकी प्राइस 20 रुपए हो गई, आपने 5 यूनिट्स परचेस किए, मतलब आपने 100 रुपीज का खर्चा किया है. नाउ सी your total expenditure, this was earlier 60, now it is 100. तो your total expenditure is increasing. बराबर है. Whenever total expenditure increases, okay, whenever total expenditure increases, we call this means ED is more than 1 ना. total expenditure आपका increase हो रहा है, elasticity of demand is more than 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके, इन दैट केस योर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक. इन दिस नेक्स्ट क्या हुआ है? 30 रुपीज प्राइस हुई, तो 4 यूनिट का डिमांड था. टोटल एक्सपेंडिचर आपका हुआ 34 जा 120. 30 रुपए की चीज थी, 4 यूनिट आपने परचेस किया, मतलब 120 रुपए आपने खर्चा किया. जब प्राइस 40 रुपए हो गई तो आपने 3 ही यूनिट्स परचेस किए. ओके, तब भी आपका जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 120. सो इन दैट केस there is no change in total expenditure. Okay, total expenditure is constant, there is no change in total expenditure. So in that case your elasticity of demand is constant. This is known as unitary elastic demand. And lastly 100 rupees आपका earlier था total expenditure. When price was 50 rupees, you demanded only 2 units, so your total expenditure was 100 rupees. And when price increased to rupees 60, you demanded only 1 unit, means आपका जो total expenditure हो गया वो 60 रुपए हो गया. ठीक है, तो आपने 60 रुपए का ही खर्चा किया है. Now your total expenditure decreases, so in that case ED is less than 1. बराबर, एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज हुआ है तो ED is less than 1. इसी को आप क्या बोलोगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, सो एकदम इजी है ये. इसको थोड़ा सा हम अभी हमारी नोटबुक लेते हैं, नोट्स के ऊपर देखते हैं और रिवाइज करते हैं. ठीक है, कि समझा है कि नहीं समझा है. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इजी है, काफी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, हियर इट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सी, दिस मेथड वाज आल्सो डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि तीनों मेथड्स, ऑल 3 मेथड्स आर डेवलप्ड बाय हुम? अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड. भाई ये चीज आप देख लो, इसको आप अंडरलाइन कर लो. वेयर इज माई पेंसिल? आई गॉट इट, सॉरी. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. आपको अगर बोला गया कि टोटल आउटले मेथड, तो आप बोलोगे भाई ये मेथड तो सर ने पढ़ाई नहीं थी, ये क्या चीज है. ओके, सो टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोथ आर वन एंड सेम. ओके, in this method the elasticity of demand is measured by comparing the change in total expenditure on a commodity in response to change in price. मतलब जब आपकी प्राइस में कुछ चेंजेस होता है
तो आप उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए कितना खर्चा करते हो, ठीक है। डिमांड में भी आपका चेंजेस होगा डेफिनेटली, बट हम डिमांड की बात नहीं करते, हम टोटल एक्सपेंडिचर की इस पे बात करते हैं, ओके। इन शॉर्ट, टोटल एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर एट न्यू प्राइस, ठीक है। जब आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उस टाइम आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, और जब न्यू प्राइस आपको मिली तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था। ये जब आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड वी कम टू नो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। एंड टू स्टडी दिस प्रॉपरली और इन डिटेल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन फॉलोइंग प्रपोजिशंस, ओके। एक क्या हुआ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी, ओके। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये हमने पढ़ा है कई बार। ईडी इज इक्वल टू 1, तो देखो उसमें क्या है, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, मतलब प्राइस आपकी कम हो या ज्यादा हो, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। वही हमने डिस्कस किया था ना कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। बस इतना एक सेंटेंस आपके लिए जरूरी है, कर लो अंडरलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Under relatively elastic demand, ED is more than 1. Okay, so when with the change in price of a commodity, total expenditure increases. Okay, मतलब जब जब आपका total expenditure increase होगा तो आप क्या बोलोगे, demand is relatively elastic. Okay, elasticity of demand is greater than 1, बराबर है। एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, व्हेन विद द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, मतलब ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, ओके। सेम यहाँ पे नीचे हमने चार्ट बनाया है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके। So this is all about your elasticity of demand. Generally, we have discussed only two types. Okay. First was, here you can see, ratio method or percentage method, also known as arithmetic method, also known as proportional method. Second thing, total expenditure method, also known as total outlay method. Total expenditure method, also known as total outlay method. Fine. So this is just all about first two methods. हमने दो ही मेथड्स डिस्कस किए, हम तीनों के तीनों मेथड्स भी काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, बट हमने फिलहाल सिर्फ दो ही मेथड्स को डिस्कस किया है, ओके। नो प्रॉब्लम, जस्ट डू दिस। इफ एनी डाउट, क्वेरीज, डिफिकल्टीज, डेफिनेटली कम टू मी, आई लेट यू नो। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अपने क्वेरीज अपने तक ही रखोगे तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा, ओके। एंड थर्ड मेथड जो है आपका पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिक मेथड, दैट वी विल सी टुमारो, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा और भी टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, उसको हम कल देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड दिस ऑल क्वेश्चन, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो भी क्वेश्चन हो रहे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ठीक से करने पड़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग, दिस टाइम योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल ऑल्सो बी चेंज्ड, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रख के थोड़ा रिस्क फैक्टर रहने वाला है, तो आपको प्रॉपरली करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।